Okay, if this rod is positively charged, what will be the charge induced on the sphere? Final charge on sphere. A negative charge. Why? Sir, because if the rod is positively charged, then it will attract negative ions. तो इसको शुरू करते हैं. तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे सर आज मेरे क्लास में लोग पास पेपर्स करेंगे. जी सर, होमवर्क नहीं किया मैंने, सॉरी. There is a neutral sphere. सर मैंने भी नहीं किया. Neutral sphere means that it has both equally positive and negative charged. Equal positive and negative charges. no net charge, which means the number of negative and positive charges are equal. Right? Yeah. If you bring a positively charged rod near the sphere, what will happen? The negative charges will come on the left side and the positive charges will move to the right side. Negative charges बनाऊं left side में. So क्या कहा आपने? How many negative charges should I make on the left hand side of this sphere? 2, 4, 6. Maximum 6 हो सकते हैं, but हम हमेशा उससे कम बनाते हैं. 4 भी दे सकते हैं हम, मर्जी है. सर 5. Okay, let's say the 3 negative charges. Right side पे कोई charge होगा या नहीं? जी सर होगा पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव चार्ज. क्यों होगा? ये ऐसे कॉपी करना है बेटा आप लोगों को. क्यों होगा right side पे positive charge? Because these negative charges were actually part of these positive charges. That's why they were neutral, right? Because of attraction from the rod that is positively charged, these electrons are gathered and are on the facing end of the rod. Now, next step में अगर मैं इस sphere को earth कर दूं, step number 2, if I connect an earth wire, what will happen? सारे पॉजिटिवली चार्ज जो सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रिमूव हो जाएंगे. These positive charges will Be removed. Be earth. Yes. How will they be removed? Will they move to the earth? Earthing में No यही sir, होता है. सर नहीं पॉजिटिव चार्जेस कभी भी मूव नहीं करते. Yes. Sir protons don't move. Yes sir. So what will happen to these? Sir the negative charges will come up. Yes sir. नेगेटिव चार्जेस आएंगे. Yes sir, Where- नेगेटिव चार्जेस जाएंगे. The negative charges or electrons from the earth will move To the sphere. Sphere. to the sphere. इससे कोई positive charge क्या हो जाएगा? तो फिर अनइवन हो जाएगा. नेगेटिव हो जाएगा. Because वो जी, sir. इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. Electrons from the earth will be attracted by the positive charges on sphere. कितने इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर पे आ गए? Let's say there are 3 electrons attracted by the positive charges from the earth. So will these positive charges be neutralized or not? They will be neutralized. तो फिर overall 3 electrons होंगे. तो ये जो 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं हम इनको हटा देते हैं. They are neutralized. They have no effect now. Yes. And earth wire is still connected. ठीक है? Right. यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है. Now, should I remove the rod first or the earth wire first? The earth wire first. Why? सर बिकॉज अगर आप लोग पहले रॉड हटा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अर्थ में मूव कर जाएंगे. तो हम अगर पहले अर्थ हटाएंगे तो वो ऑलरेडी अट्रैक्टेड होंगे विद द रॉड. Very good. Remove the earth wire first so that the charges gained by sphere
आप लोग कॉपी कर रहे हैं ना साथ साथ? सर मैंने अभी स्टार्ट किया, मैं कर रही हूँ। जी सर। Do not move to, इस दफा एल्सा नहीं लिख रही है। सर ऐसा नहीं लिख रही है। So you are the new Elsa of our class. Right now I'm teaching Elsa what to write there. और उसको समझ में आ रहा है? अब समझ आइए आपका फेसबुक का स्टेटस ऐसे कैसे था? Don't teach me. और लिखने का टाइम दें प्लीज, हटाइएगा नहीं, रिक्वेस्ट है बस। सर अभी तक आया को समझ में नहीं आया ऐसा क्या है, कौन है? सर की बहन है ना। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं नजर आ रही? सबको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? सर उमर ने सर, आ रही बताया है। था। मुझे तो आ रही है, मुझे आ रही है। मुझे भी आ रही है सर। तो मैंने रिकनेक्ट भी किया फिर भी ठीक। मैं डिवाइस चेंज कर। सर एल्सा मुझे समझ में आ गया कौन है, आपकी सिस्टर है ना सर एल्सा। अयान for the sake of humanity चुप कर जाओ। After the rod is removed, सही हुआ 5? सर ये पहली स्लाइड है। ये पहली, आज की पहली है। यस, the charges are redistributed because of repulsion. सर आज हम लोग कॉन्सेप्ट पर स्टार्ट करेंगे। नो, अभी बहुत कुछ रहता है। शुक्र है सर, मैं तो बारिश की वजह से जा नहीं सकी। मैं कल गई हूँ तो आधे रास्ते से वापस आ गई हूँ। नो प्रॉब्लम। कल से बारिश हो रही है। सर पानी खड़ा हो गया आपकी तरफ? बहुत। सर आपको मेरी गली की मैं आपको वीडियो भेजूंगा होगा के फोन से। सर स्विमिंग पूल है, 1 फुट गहरा पानी है। स्विमिंग पूल मेरी गाड़ी में पानी चला जाएगा। है। सर हमारी गाड़ी के अंदर तो नहीं है, हमारे घर के लॉन के अंदर आता है। हाँ सर बहुत ज़्यादा पानी था आज, डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा पानी था। डिफेंस में ही होता है बहुत ज्यादा पानी। सर आपने वो रंगी डाल वाली वीडियो देखी जिसमें लोग वो बिल्डिंग की 30 फुट की हाइट से छलांगे मार रहे हैं पानी के तालाब के अंदर? सरजानी टाउन। यस सर सर। यस, आई डिड। सर मैंने भी ट्राई कर रहे हैं। तीन चार दिन तक ऐसी बारिश चली, मुझे मौका मिल जाएगा। सर डन। सर आई एम राइटिंग इट, क्विक। सर हमारे स्कूल में आज हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया, मतलब हमारे सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है स्कूल। खत्म भी हो गया? हाँ सर मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही, उन्होंने कुछ जनरेटर के बारे में लिखवाया। तुम्हारे यहाँ वो है ना सर जो लंबे बालों वाले, क्या नाम है उनका? सर आप उनको क्या जानते हैं? सबको जानता हूँ। सरदार मोहसिन खान। हाँ, सरदार मोहसिन। सर आप उनकी बिरयानी की दुकान देखिए। सर मुझे आप ये बताएं कि आप इतना पढ़ने के बाद फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सर ने आपको देख के पता नहीं क्यों हमें एंजाइटी होती है कि हम इतना भी नहीं पढ़ सकते। नहीं सर पढ़ाई ने जारी रखनी आप डॉक्टर बनना है ना? चाहिए। तो नहीं, एमफिल होगा फिर पीएचडी होगा। पीएचडी करेंगे आप? सर ने करनी है इंशाल्लाह सर। पहले एमफिल तो कर लूँ मैं। सर मैं तो पढ़ाई नहीं करूँगा यूनिवर्सिटी के बाद। मिनिमम 2 साल का होता है एमफिल। 2 साल? तो 4 साल वाला बैचलर्स होता है क्या? यस, ग्रेजुएशन होती है 4 साल, देन 2 साल एमफिल, एंड 3 साल तकरीबन पीएचडी में लगता है।
सर मैं 2 मिनट में रिज्वाइन करती हूँ, मैं जस्ट कैन गेट बैक। जब आप लोग कॉपी कर लें तो बताएं। सर मैं तो कर चुका हूँ सर, मैं पानी लेकर आया था, तक बाकी सब कर रहे हैं। इजाजत है? जी इजाजत है, जल्दी आ जाए। ओके सर। सर आज बारिश इतनी ज्यादा हुई है, आप यकीन करें। यकीन आ गया मुझे, मैं गाड़ी जब मेरी गाड़ी में पानी चला गया तो और कैसे यकीन आएगा? इससे ज्यादा यकीन नहीं आ सकता। ब्रेक हो गए यार, मतलब सोचो सर ने यकीन कर लिया यार। सर मैं आज खयाबान बुखारी में फंस गया सर, विंड स्क्रीन तक पानी आ रहा था। बस अल्लाह रहम करे। सर आगे बढ़ जाएं। सबने कॉपी नहीं किया है सिंगल। सर मैं कर रही हूँ, मेरे बाबा की फ्लाइट है, वो अभी निकले हैं, पता नहीं आज कैसे जाएंगे वो। मतलब हेलीकॉप्टर मंगवा लें यहाँ से, डायरेक्ट जाएं। हाँ ना, हेलीपैड मेरे दादा बनवा कर जो गए थे। तस्बिया कर लिया कॉपी? सर 2 सेकंड 0.5 लिखने दें। सर 2 सेकंड हो गए। फ्री हो जाओ तुम बस। सर डन। डन। ओके नाउ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको आप लोग कॉपी करें। नेक्स्ट स्टेप, प्रोसेस नंबर 3 फॉर चार्जिंग बाय कंडक्शन. This method is also for conductors. Sir, we have to copy this? Yeah. सर मेरी तरफ से बारिश तेज हो गई। जी सर मेरे यहाँ भी। Predicted है Thursday तक. सर कंटिन्यूअस चलनी है? Yes. सर अल्लाह बिजली गई है किसी की? Have 4 minutes to copy this, everyone. सर मेरा और उमर का एक ही एरिया है। सर ये एज के बाद क्या लिखा हुआ है? स्पेयर यू एज। वो डायग्राम है ना, उसको लिखा हुआ है as. as shown. As is referring to this diagram. ओके सर। सर स्क्रीन ग्लिच कर रही है, अब सही हो गई। सर ये डायग्राम्स भी बनाने हैं? जी बेटा, पूरा फुल डायग्राम्स बनाएं। ये डायग्राम्स बनाने के लिए भी आती हैं, इसीलिए इस वक्त नोट्स में बनवा रहा हूँ, वरना फिर आप फेमिलियर नहीं होंगे इनसे।
Tell me when it's done. सर अभी खाली 3 मिनट्स होने 4 मिनट्स होने भी। Okay. सर ये बता दें कि कौन सा डायग्राम कौन कौन से फ्रेज को रिप्रेजेंट करता है, ये तो बता दें। मुझे भी पूछना। ये सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सर तो ऑन स्फेयर यू एस के बाद कोई डायग्राम ना बनाया बनानी है ना? बनाना है सी राइट वाली लेफ्ट वाली। This is the diagram. राइट वाली। अच्छा सर दूसरा वाला बताएं, इफ द टू स्क्वायर्स वाला। If two spheres and this. ओके ओके समझ गया। सर आपके हिसाब से हम लोग पास्ट पेपर्स कौन सी क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे? कौन से पास पेपर्स? ये इसके टॉपिक क्या? जी सर। मैक्सिमम 2 क्लासेस। 2 क्लासेस? तो बहुत लंबा चैप्टर होगा ये, मेरे सर ने क्या किया है इसमें। चैप्टर इतना बड़ा नहीं है लेकिन ये बेसिक्स हैं तमाम इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर आप चैप्टर 1 में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे तो आपको बाकी चैप्टर समझ। सर इसके और भी चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के। तो This is सर chapter- सर ने हमें अभी दूसरा शुरू भी करवा दिया स्कूल में। सर अभी हम लोग इसके अंदर पहला ही है। This is chapter 1 for electricity. सर Electricity के- स्कूल में हम लोग तो दूसरा सर शुरू हमें कर चुके चैप्टर ना आज। 1 खत्म करने में 3 क्लासेस लगेंगी। Yes, then we will solve past papers. Then we will start chapter 2. अच्छा स्कूल में तो आपने ऐसे ही स्टार्ट करवा दिया। क्योंकि आप लोगों के पास पास्ट पेपर्स नहीं है ना। मैंने 20 MCQs कराए हैं उसमें स्कूल वाले में। जी सर मेरे साथ ही किए थे आपने उधर पिछली क्लास में। किए थे ना? सर 20 नहीं किए थे, 12-13 किए थे तकरीबन। अच्छा बाकी दोनों क्लासेस में 20 किए थे, आपकी क्लास बहुत पीछे है। अच्छा यार ये क्या हुआ? हम सर जब एमसीक्यूज हुए थे ना सिर्फ क्लास में मैं और वरुण थे, बस 2 थे। अच्छा सर आगे करवाएं सर, लिख लिया है सर, ये क्या टाइम ज़ाया हो रहा है। सबने लिख लिया? नो गाइस, आई एम एट लास्ट पॉइंट। सर अब आप मुझे एक चीज बताएं, Yes. ये जो क्या कहते हैं उसको, ये वैन डे ग्राफ जनरेटर इसी चैप्टर में है? आपके कोर्स में नहीं है बेटा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे सर मुझे क्या पढ़ा रहे हैं। One is here. Now charging by conduction. डन डन डन। अच्छा अब जरा सुनिए सब गौर से। Charging by conduction is also to charge conductors. What are conductors? So which have free Sir, electrons. any substance with free electrons. Okay. So there are 2 conductors. One is charged positively and the other one is neutral, uncharged. तो ये 2 कंडक्टर्स हैं आपके पास, एक पर कौन सा चार्ज है? Positive. पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव है इसमें? 5 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब है इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, नहीं है इसके पास। एंड U इज अनचार्ज्ड और न्यूट्रल। क्या मतलब है अनचार्ज्ड और न्यूट्रल का? Sir, मतलब it has an equal number of electrons and protons. वेरी गुड। सो बिकॉज ऑफ C U पर इंड्यूस्ड चार्जेस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे सर। तो मैंने 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव बना। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सब? Yes sir, clear. ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? Attract. अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो U टुवर्ड्स C मूव करेगा या नहीं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? Yes sir, Yes. करेगा। डिस्टेंस ज्यादा किसका है? पॉजिटिव चार्जेस का डिस्टेंस ज्यादा है या नेगेटिव चार्जेस का डिस्टेंस ज्यादा है फ्रॉम C? पॉजिटिव चार्जेस। Positive.
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Positive ज्यादा होगी या charges. फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगी? रिपल्शन ज्यादा होगी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। सर। लेकिन आपने क्वेश्चन क्या पूछा? Which charge is Force of nearer attraction ज्यादा to होगी सर. Very good. Which charge is nearer to C? Positive or negative? नेगेटिव। Negative है सर, So इसलिए will force of force of attraction attraction ज्यादा होगी. repulsion? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। क्योंकि करीब नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव के, इसलिए अनलाइक चार्जेस करीब हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ सर रिपल्शन। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, पूछूं? ये बिल्कुल पूछें। अच्छा सर, सर जब ये टकराएंगे तो सर वो अभी plus वाला- हमने टकराने की बात नहीं की। अभी वो अच्छा, ठीक मैं जितना पढ़ा हूं उससे आगे क्वेश्चन नहीं है। अभी इसके बाद ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहां तक सब पहुंच गए? है। ओके, नाउ स्फीयर U इज अट्रैक्टेड टू स्फीयर C। क्या एक दूसरे को इन कांटेक्ट लेकर आ सकते हैं, टच करेंगे एक दूसरे को या नहीं? करेंगे। करेंगे. Okay, so will these negative charges or electrons be transferred to C or not? यस। सही है? क्लियर है यहाँ तक? यस। यस सर। लेट्स से U के 2 इलेक्ट्रॉन C पे चले जाते हैं, तो C के 5 पॉजिटिव चार्जेस में से 2 न्यूट्रल हो जाएंगे यस सर। because sphere C has gained 2 electrons from sphere U. So sphere C had 5 positive charges, out of which 2 positive charges are neutralized. How many positive charges are there on sphere C now? 3 3 positive charges. और sphere U ने इलेक्ट्रॉन लूज किए गेन किए? लूज। तो sphere U पर चार्ज कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। अब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल। रिपेल सर, रिपेल करेंगे. बिकॉज़ लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक चार्जेस हैं। दूसरी बात ये बताएं, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों के, ये ऑपोजिट बिल्कुल फेसिंग एंड पे होने चाहिए या ऑपोजिट एंड्स पे होने चाहिए? ऑपोजिट एंड्स पे। ऑपोजिट क्योंकि एंड। रिपेल कर रहे हैं तो ये ऑपोजिट एंड्स पे होंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसमें से किसी ने कुछ पूछना Yes, sir. है? Perfect. उमर आपने पूछना है तो पूछें। सर लास्ट स्टेप में क्या हुआ, जब जो न्यूट्रलाइज किया जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने, तो ओवरऑल C के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव रहा, तो अब वो क्योंकि दोनों में सेम चार्जेस आ गए थे तो उन्होंने रिपेल कर लिया, बस ये हुआ। यस। ठीक। अब मुझे बताएं चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन में डिफरेंस क्या है? दिस सर कंडक्शन में वो दोनों टच हुए, कंडक्शन में जो 2 स्फेयर्स हैं वो टच हुए थे और इंडक्शन में टच नहीं हुए थे अर्थिंग के थ्रू। और कहते हैं फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन चार्जिंग स्पेसिमेन एंड द सब्सटेंस व्हिच इज चार्ज्ड। इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट होता है या नहीं होता? इंडक्शन में नहीं होता। और कंडक्शन में होता है। इंडक्शन में अर्थिंग, इंडक्शन में अर्थिंग, कंडक्शन में अर्थिंग होती है। इंडक्शन में अर्थिंग होती है, कंडक्शन में अर्थिंग नहीं होती। इंडक्शन में रॉड में से चार्ज कम हो रहा है या सेम है? चार्ज सेम रहता है रॉड में। और कंडक्शन में दोनों स्फेयर्स का चार्ज वो न्यूट्रलाइज कर देता है। कंडक्शन में चार्ज स्फीयर C पर आप देखें पहले 5 था, फिर कितना रह गया? 3 रह गए। Which means in conduction the charge on the charging specimen decreases. सही है, यहाँ पे neutralizes. Charge on the charging specimen. Sir, it always decreases, never increases. Always decreases, yes, always decreases. दूसरा इस पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। सही है। स्फीयर पे चार्ज कौन सा आया है? Positive. पॉजिटिव आया। यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव सर। नेगेटिव था। पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक सर, सही। कंडक्शन में सेम यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव पे वहाँ पे पॉजिटिव पे नेगेटिव था। यस, वहाँ पर ऑपोजिट चार्ज आता है इंडक्शन में, कंडक्शन में चार्ज आता है सेम। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये चैप्टर आसान है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। नाउ बारिश स्टार्ट हो गई है। सर मुझे एक चीज पूछनी है सर, एक मिनट पीछे जाएंगे सर प्लीज, सर एक चीज पूछनी है। सर मुझे ये डायग्राम नंबर ए समझ में नहीं आया, तो C और U है जिसमें आपने 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज लगाए, ये वाला सामने वाला सर, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड, यस
सी पे पॉजिटिव चार्ज है, सी की वजह से यू के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हो रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये करीब है तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, दैट्स व्हाई सर दिस पॉजिटिव चार्जेस तो अट्रैक्ट हो रिपेल करेंगे, ओके ठीक है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन करीब नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके सर, थैंक यू। and that's why the sphere U will touch sphere C, and when it touches, the electrons of sphere U are transferred to sphere C, making it partially neutralized because it had 5 positive charges and now it has just 3. Because of it, electrons from U are now transferred to C, neutralizing some of its positive charges. Copy electric field. Sir, we have to copy all of this? Yes, With the diagrams? with the diagram. सर अभी 10 मिनट दीजिएगा अपने। सर ये डायग्राम बहुत मुश्किल है सर बनाना। क्या मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सर आप इधर अपनी स्ट्रीम में डाल देना इसके लिंक्स या फिर फोटोज, तो सर आसान हो जाएगा, हम लोग प्रिंट करके चिपका देंगे। स्ट्रेट लाइंस या सर्कल्स बन रहे हैं, आप लोगों को स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स बनाने में आप कह रहे हैं कि मुश्किल होगी। नहीं सर, उसमें आप ऐसे लोग होते हैं जो डायग्राम का सोच के साइंस नहीं लेते। लेकिन उन्होंने तो ली भी है ना। इजी है हमारा, इतना मुश्किल है, आई कैन ट्राई इट। सर हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पहले दिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था ना। जी Yes, as we are सर पूछ रही थी कि जब पहले चैप्टर शुरू किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, आपने बताया था हमें। पहले डिस्कशन कर चुके हैं। सर वो रिकॉर्डिंग मुझे आप पर्सनल नंबर पे भेजेंगे या ग्रुप में लगाएंगे? पर्सनल। ओके ओके सर। फिर अयान आप हमें फॉरवर्ड कर देना। क्यों? क्या पता हमारा भी काम हो जाए, तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, अल्लाह ताला ज्यादा दिलवा सकते हैं।
अस्सलामुअलैकुम जोहा। हेलो सर। यस जोहा, अब कनेक्ट हो गया इजीली। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। सर नहीं, मैंने फ़ोन से किया, वो मैंने अकाउंट तो बना लिया, लेकिन आई थिंक एक ऑप्शन इसमें रहता है जो मुझे सीखना है। इसीलिए मैंने जिस दिन आईडी दी थी आपने उस दिन बना लेना चाहिए था ना अकाउंट। जी सर, मुझे नहीं पता था कि इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। इसकी मैंने क्लास रिकॉर्ड की हुई है, जब आप इसको सुन लोगे यहाँ से पहले तक का आपको समझ आ जाएगा। आपने वो बाकी 2 लेक्चर सुन लिए हैं इससे पहले के? सर मैंने लेक्चर 1 सुना, लेक्चर 2 नहीं। ओके चलिए आप यहाँ से इसको कॉपी करें इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके सर, आपकी स्क्रीन नहीं नज़र आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नहीं सर। आ रही है सर, मुझे तो आ रही है। एक दफ़ा आप रीजॉइन करो फिर जोहा, स्क्रीन सबको नजर आ रही है। ओके सर। Is it visible now, Zoha? सर ये आखिरी वाला रेड वाला मैं स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ, मैं उसको प्रिंट आउट निकालूंगा, वो मुझे बनाया नहीं जा रहा। आप इसको सिर्फ रफली ड्रॉ कर लो उमर, बस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को कट नहीं करनी चाहिए, ठीक है? सर यही तो मसला है सर, उसका मुझे गोला नहीं बनाया जा रहा, मुझे आर्ट्स नहीं आती सर। सिंपल है, तो मैं देखो यहाँ पर आईपैड में भी उतना ही बना लूँगा वैसे। 2 सर्कल बनाने हैं, मतलब आप बनाने हैं। आप बनाए। नजर आया? क्या बना रहे हैं सर, माशाल्लाह से। ऐसे ही सर बनाएंगे। ये डिफरेंट है, डिफरेंट। बिल्कुल बेटा, बट आपने प्रिंट तो नहीं करना ना, मैंने आपको कहा अपनी डायग्राम्स बनानी है सेम, मैंने आपको कहा आप रफली ड्रॉ करें बस। फील्ड लाइन शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एवरी फील्ड लाइन रिपेल्स द अदर फील्ड लाइन। कोशिशें जारी है सर। सर मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया, रात को बैठ के आराम से फिर करूँ। ठीक। सर मैं भी यही कर रहा हूँ। सर देयर वाज फिगर 1 देन देयर वाज फिगर 2। जो अब ये 2 पॉजिटिव चार्जेस वाली है, ये तीसरी फिगर है। आप सारी बस फिगर ड्रॉ कर लें, चाहे किसी भी सीक्वेंस में हो, उससे फर्क नहीं। जो कोई कनेक्टेड तो नहीं है ना एक दूसरे से? नहीं कोई कनेक्टेड नहीं, दे आर इंडिविजुअल, these are connected with each other because this positive charge is repelling this positive charge. सर डन। Okay, now what is electric field? It is the region Around the charged particle where its electric force can be felt. Very good. The electric field is the region around a charged particle where if there is another charged particle, it will experience a force. How many types of electric forces are there? Electric forces? Yes, there are 2 types of electric forces, attractive and repulsive. Forces. Okay. There are 2 types of electric forces, attractive and repulsive. When is the force attractive? When the charges are Negative. Opposite. Very good. When is the force repulsive? When the charges are Charges are same. Opposite. same or like. The force is repulsive when the charges are same, or you can say like charges. Electric field line is the path, or you can say the direction in which a positive charge, if placed stationary in an electric field, would move. For example, this is a positive charge. If you place a positive charge in the field of this positive charge, what will happen to this positive charge? Will it experience a force or not? It will Repulsive force, sir. Yes. It will experience a repulsive force, and in which direction? In the direction of this arrow. In the direction of this arrow, right? Yeah. So what does electric field line represent?
electric field line represent the path taken by taken by a positive positive charge. charge when it is placed freely in electric field. Now, if you place Sir, a positive charge, why electric field lines does not represent the paths taken by negative charge? because you cannot talk about the two charges simultaneously, right? So you have to consider one out of these. So इसको conventionally एक ही charge को consider करके इसको define किया जाता है. सर मुझे समझ नहीं आया. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं? अब्दुल अहद खोसो, लिखा हुआ क्या है? The path taken by positive charge particle when placed freely in electric field. Translate this sentence in Urdu. सर जो रास्ता पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेता है जब उसको फ्रीली प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में. वेरी गुड. सो ये पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है? है सर. इसकी फील्ड में मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया. फोर्स लगाएगा? फोर्स लगेगी इस पे या नहीं लगेगी? लगाएगा सर. किस तरफ लगेगी सर? ऑपोजिट या टुवर्ड्स? सर ऑपोजिट. So Opposite, sir. It will move in this direction. So what will this arrow be called? It will be called electric field line because it is the path taken by this positive charge when you have placed this in electric field of any other charge particle. ठीक है सर, समझ आ गई. Now, अब मैंने देखिए एक चार्ज पार्टिकल और बनाया है. ये नजर आ रहा है आप लोगों को? सर ये जी सर आ रहा है. अब मुझे बताएं इस चार्ज पार्टिकल पर एनोड which is positively charged electrode किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? Towards left? नेगेटिव. लेफ्ट सर, लेफ्ट. Away And what from it. about cathode? सर राइट साइड. Cathode is also applying force towards left, towards itself. सर लेफ्ट पे कैसे सर? अच्छा अच्छा, एरोस तरफ. पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, जो कैथोड है वो अट्रैक्ट कर रही है, एनोड रिपेल कर रही है. सो इन विच डायरेक्शन विल दिस चार्ज पार्टिकल बी मूविंग? लेफ्ट साइड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ्ट साइड पर. टुवर्ड्स नेगेटिव. सर समझ नहीं आई ये बात. ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. इस पर एनोड कहाँ पर फोर्स लगा रही है? It's to the right side. राइट To से the लेफ्ट कर रहा है. टू द लेफ्ट साइड. अज़बिया, रिपल्सिव फोर्स है. जी सॉरी, वो मैं देख रही थी कि वो प्लेस कहाँ है. सॉरी तुम्हारा राइट लेफ्ट का मसला हो गया ना. बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा है. सर, मुझे पता है. अच्छा जी, ये पॉजिटिव चार्ज है and this positive charge is experiencing forces because of anode and cathode because it is in the electric field, right? Yes. So this positive charge is feeling force of repulsion by this positive charged electron, right? Towards left. Yes. Okay, and similarly this is cathode. Cathode is applying attractive force on this charged particle. Towards left. Direction of force is towards left on this charged particle. So in which direction will this charged particle be moving? कहाँ move कर रहा हूँ? नेगेटिव. Towards the left side. तो ये जो arrows बने हुए हैं ये सही बने गलत बने? सही बने हैं. What are these arrows representing? Electric field lines. The path. The path. Read this line. The path taken by positive charged particle when placed freely in electric field. Very good. अब फिर एक और example देखें. Let's say there is a positive charge particle here. In which direction will this be moving? So it will be attracting Towards the negative charge, right? And the charge particle will take this direction to move towards the negative charge. So this अच्छा arrow सर, is, मुझे पूरे सारे डायग्राम समझ में आ गए सर. yes. तो सिंपल ये है कि जब भी आप पॉजिटिव के लिए बात करेंगे तो the field lines will be outwards, and when you will talk about the negative charge particles, the field lines will be inwards. इनवर्ट्स. यस. पॉजिटिव के लिए field lines कहाँ पे हैं? Outwards या inwards? इनवर्ट्स. पॉजिटिव के लिए field lines अपवर्ड्स सर. outwards, not upwards. अयान, सर मैंने नहीं, अज़बिया ने कहा था. जिसने भी कहा था upwards कहाँ से आ गया? Excuse me, I said outwards. वैसे रिकॉर्डेड है, अयान ने कहा था. अयान आप मुकरे नहीं. Negatively charged particle है. In which direction are these electric field lines? They will be moving inwards.
they are not moving. They are Matlab- representing the direction of force which is inwards, right? If there are two charged particles, that are like, which means positive charged particles, so the force is repulsive. That's why the field lines will be Outwards. repelling each other, right? These field lines are repelling each other. They will not meet, or they will not And they are outwards. They are outwards, yes, very good. And they are also showing that the field lines are repelling each other. Similarly, if there are two charged particles and these charged particles are opposite, for example, positive is with negative, the field lines will meet each other. The negative charged particles, electric field lines, and the electric field lines of the positively charged particles, these field lines are now intersecting each other, right? They are now connected. When the charges are like, the field lines will repel. They will not meet. They will not intersect. But when the charges are opposite, these field lines will meet. They will cut each other. They will intersect. They will form a single field line, or you can say combined electric field lines. So यहाँ पे intersect तो नहीं हो रही है कहीं पे किसी Intersect लाइन. का मतलब एक तरह से कट करना ही नहीं है, एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया है उन्होंने. पॉजिटिव की फील्ड लाइंस और नेगेटिव की फील्ड लाइंस अब इंडिविजुअल नहीं है, दे आर नाउ कंबाइंड. इज इट क्लियर? नहीं, ये वाली बात नहीं समझ आई. ये चार्ज पार्टिकल कौन सा है? पॉजिटिव इसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स हैं या नहीं है? है, आउटवर्ड्स हैं. नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स हैं. क्या ये सेपरेट है या कनेक्टेड है? कनेक्टेड हैं. एंड व्हाई आर दीस कनेक्टेड? Because the both Force is particles are in the attractive. same electric field. Because the force is attractive. Right. Now, if you talk about these positive charges, तो फील्ड लाइंस मीट कर रही हैं, कट कर रही हैं एक दूसरे को. नहीं. They are repelling each other Yes. because the forces Are are like repulsive, same. repulsive forces. Yes. और इसी तरह से यहाँ पर ये opposite charge plates हैं, that's why the field lines are meeting each other. अच्छा, तो सर फिगर 2 में और लास्ट वाली में दोनों में इंटरसेक्शन हो रहा है. Yes, इसमें भी intersection हो रहा है because opposite charge plates है ना, और इसमें भी intersection हो रहा है. Clear है? जहाँ तक clear है सबको? जी सर. अब एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है कि every field line repels the other field line. हर field line दूसरी field line को क्या करती है? Repel करती है. कभी भी ये नहीं होगा कि दोनों लाइंस एक दूसरे को intersect कर दें, कट नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है? They will be individual. एक दूसरे से मीट कर गई है पॉजिटिव और नेगेटिव की, लेकिन हर फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन से सेपरेट है, इंडिविजुअल है. They are not intersecting each other. Is it clear? Yes, Clear, sir. Why is this line curved while others are straight? सर बिकॉज इट्स यहाँ पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव की रॉड नहीं आ रही है. इट्स नॉट बिटवीन द टू. Okay, अब जैसे मेरी बात सुने, इसमें मैंने 3 लाइंस पर 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 and 3. यस. 2 is feeling force of repulsion by 1 and 3 both. Right? आगे Field- समझ. जी जी Field line is feeling repulsion by 1 and 3 both, right? But field line 1 is feeling repulsion only from 2. only from 2. That's Yeah. why it's curved. So the field line that is at the end will be curved because of the repulsion from one side only. So it does not get affected by being placed in between the two rods. It is affected. That's why there is a field line. Field line is representing that there is some force, electric force, but this field line is actually being repelled by one direction only. That's why it is curved outside. Got it, sir. अच्छा, आखिरी चीज जो उसमें पूछी जाती है आप लोगों से, एरो क्या बता रहा है आप लोगों को? एरो, The path taken by. no, arrow is showing you the direction of force on positive charge. सर लाइन पाथ बताती है और एरो डायरेक्शन बताता है. हाँ, किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की. नहीं, जी सर, डायरेक्शन positive charge. नहीं, डायरेक्शन फोर्स की. किस पर? पॉजिटिव चार्ज. What Force does है. this arrow represent? The direction Sir, of the force on the direction positive of the charge. force on a positive charge. Very good. What does this arrow represent? The direction of force on the positive. Direction of the force on the positive charge. What does this line represent? The path Sir, the taken direction by of the path. Path taken by the positive charge particles.
right? Not taken by the For positive charge, the field lines are outwards or inwards. They are outwards. For negative, They are inwards. if the Inward. charges are like, the The field electric lines field lines will repel. They repel. will be repulsive. They will not meet. They will not intersect. And if the charges are opposite, they will be a combined. They will Lines attract. will intersect, and they are Very good. linked together. They will intersect. They will be forming a combined electric field, right? Yes. सबसे आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, if the field lines are closer, what will this represent? I'm making two charged particles with the field lines. Let's say one has four field lines, and the other one has 8 field lines. Which one is stronger? The one with 8 field lines. Yes. So number of field lines represent what? The number of field lines represent the more charge in the particle. I Strength. don't know. Strength. Yes. Strength of what? Strength from the electric field. Strength of electric field, strength of electric force. Both is correct. So which charge is stronger, B or A? B. Why? B. Because it has more electric field lines. More electric field lines for the same Because area. of more force. Okay. So it has more electric field strength as compared to A. Is this correct? Yes. Is this clear, everyone? Yes. Sir, पिछली slide दिखा देंगे please. Yes. आखिरी चीज में यहाँ पर लिख लेना है आप लोगों ने. If the field lines are closer, the electric field strength will be greater. सर क्या लिखना है? If the field lines are closer, the electric field इसके strength आगे greater. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर Is greater, yes. Closer field lines That's it. represent stronger electric field. जोहा समझ आ रहा है आपको? जी सर. फील्ड लाइन इज व्हेन आया, फील्ड लाइन जोहा का इज जवाब भी तुम दे दो. सर मैं सॉरी जी सर. ओके. यस आया, आप क्या कह रहे हो? नहीं सर मैं रिपीट कर रहा था कि सो व्हेन फील्ड लाइंस आर क्लोजर सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर. आपने यही कहा ना? जी मैंने यही कहा. ओके सर. सर जो लाइंस होती हैं वो पाथ बताती हैं बाय द पॉजिटिव चार्ज, और जो एरो होता है वो डायरेक्शन बताता है व्हिच इज ड्यू टू फोर्स, राइट? Yeah, direction of force on positive charge by the field, दैट इज एरो. and the arrow and the line will represent the direction of movement of the charge particle. Sorry, the path of the movement of the charge particle. Line represents. आखिरी चीज इस टॉपिक की वो है, इसको कॉपी करें, एप्लीकेशंस एंड हैजर्ड्स, एंड दिस इज योर असाइनमेंट फॉर एवरीवन. आप लोगों ने रिसर्च करनी है फॉर एप्लीकेशन एंड हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. कॉपी दिस एंड in the next class we will be discussing applications and hazards of static electricity. अरे सर मैंने इस पे शायद रिसर्च की भी है. ओके, जिसने भी किया या नहीं किया वो आप नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे. इसको कॉपी करें आप. सर इसको ओके सर. सर फरूक मेरी आपसे सर एक रिक्वेस्ट है सर. जी सर मैं